good afternoon, everyone. I've been told that all of you have registered from all over India. A very, very, very warm welcome to all of you from us at Anurag and at Smart Homes. My name is Bindya, and as you know, the broad objective of today's webinar is to let you know about Dolera, about smart homes, and the upcoming project of ours, which is Forest Estate. Tanmay, can we move on to the next slide, please? Yes. So today's agenda in detail would be this. We will talk to you about our organization, Anurag and Smart Homes, the partnership that we have. We will let you into insights about Dolera Smart City, the Forest Estate project, and what are the exclusive benefits for you all as channel partners. Yeah. After that, of course, whatever questions you all have, our panelists who are Tanmay, next slide, please. In our panel, we have Mr. Rupinder, we have Meenakshi ji, and we have Mandir. All three of them are experts in the market, especially Dolera, and they will answer your questions if any after, if there are any left after I ask them. Yeah. So feel free to ask any of those questions that you have in your mind. Okay, so let me just tell you all, Rupinder ji and Meenakshi ji, they are both directors at Smart Homes, and they are the ones, they are the mind behind all these projects in Dolera, especially under Smart Homes, especially Forest Estate that we are going to talk about today. We also have with us Mandhir, who leads Gujarat for Anurag. He's the Deputy Vice President here, and he will too answer a lot of questions for us. Yeah, so let us move forward. Uh, Tanmay, next slide. So, Amandir, as we move forward, why don't you first of all introduce Anurag for us? Tell us something about Anurag. Thank you, Bindya, for the introduction. So glad to see the active participants here with us. Thank you, everyone, for coming in. So, just to give you a little, Anarok needs no detailed introduction. We all are well aware about it. I think what we really want to know is why Dulera, and in Dulera, why smart homes? Is the Hmm, question. hmm, I still remember back in 21, 22, when there was a lot of discussions happening about Gift City. So we were thinking, should we really get into Gift City or not? हम सोचते रह गए और Gift City picked up its boom. So we really missed that bus. That was we just started. Since then I was very closely looking at Dulera क्योंकि Gift City के बाद में next number that was the largest infrastructure assignment that is going in Gujarat. I was closely looking at Dolera, and then I was just waiting for the right opportunity. So I think after waiting for 2 3 long years, I think this was the time that wherein we should have entered Dolera. There has been a lot of momentum now. So once we decided कि अभी Dolera जाना है, the biggest challenge was to find the right partner. It is such a vibrant and as well as such a difficult market to understand क्या ही हो रहा है वहाँ पर. So we explored all the options in hand, and luckily I met with Meenakshi ji. And then when we reviewed in detail, we found out that they are a good partner to be in, because as values as Anarog, it is more about values. So we wanted कि ठीक है business करें लेकिन with the right partner. So I think that is where we collaborated with Smart Homes कि ठीक है आप बनाइए हम बेचते हैं by using our things. So that is how this collaboration happens. So our purpose in this will be, as this entire partnership is all about कि Smart Homes has been there in market from last quite a good time, wherein they can focus on their core expertise, which is development, and we as NROC will take care of the sales and marketing. So with that agenda, we entered into this partnership, India. okay, thank you. Thank you, Mandir. So let us directly start with the questions to understand Dolera and smart homes firstly. Okay. So, Rupinder ji, this question is for you. Tell us what is it? So there is a smart city revolution going on in India, right? We've come up with a smart city mission, and what I understand is we've invested more than 2 lakh crores in this mission. Okay, now Dolera being one of the smart cities, touted to be one of the smart cities. Can you tell us what is the idea behind it? How will it contribute to the industrial revolution in India?
Basically, Dholera is India's first greenfield smart city. और हाँ हाँ जो 2014 में जब गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 100 स्मार्ट सिटीज जो है ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटीज हैं वो क्रिएट होंगे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिटीज, तो उन हम्म सिटीज को अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन उसमें नई टेक्नोलॉजी दी जाएगी, उनमें नए सिस्टम्स डाले जाएंगे, उनको हम सस्टेनेबल बनाएंगे। बट दीज आर द ओल्ड सिटीज विच आर गोइंग टू गेट स्मार्ट। तो हम्म अभी एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी एक ही था, और उसमें उन्होंने धोलेरा को वो प्रिविलेज दिया कि हम धोलेरा को एक ऐसा सिटी बनाएंगे जो कि ग्रीन फील्ड है, जो स्क्रैच से बनेगा। अच्छा और हाँ ये हाँ डीएमआईसी कॉरिडोर के 8 नोड्स में ये सिटी वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी कहलाया जाएगा। तो ये हम्म आता है अहमदाबाद के पास, जो कि हम्म 100 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से। हम्म पुराने अगर एक्सेस को देखा जाए स्टेट हाईवेज के थ्रू, और नया हाईवे जो बनता है उसके कारण ये 70 to 80 किलोमीटर ही दूर रहेगा। और ये वेल कनेक्टेड होगा डीएमआईसी कॉरिडोर के साथ। और इसको हम स्क्रैच से बनाएंगे, इसको हम सस्टेनेबल बनाएंगे, इसको हम एक नया एयरपोर्ट देंगे, इसको हम 250 मीटर का एक एक्सप्रेस वे देंगे, जिसके दोनों तरफ हम इसको बिल्ड करेंगे, और इसमें ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे, और इसको हम इंडस्ट्रियल फोकस के साथ इंडस्ट्रियल सिटी बनाएंगे। सो दैट वाज द रीजन दिस थिंग केम इनटू द पिक्चर इन 2010, अराउंड 2010। फिर उसके बाद उन्होंने नए नए मैप्स निकाले, नया नया कुछ किया। 2012 तक इसका जो फर्स्ट फाउंडेशन लेआउट हुआ वो उन्होंने चालू किया। ओके। तो आपके कहने का मतलब है कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट या ग्रीनफील्ड सिटी मीनिंग स्क्रैच से इसको नया सिटी बनाया जा रहा है। जैसे हाँ फॉर जी। एग्जांपल दुबई ने किया था जब वो सिर्फ एक हाँ। डिजर्ट था, और उसके हाँ। बाद जो आज हम प्रोग्रेस देख रहे हैं इट इज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, राइट? सो सिमिलरली डोलेरा इज बीइंग डेवलप्ड एज अ न्यू स्मार्ट सिटी, राइट? क्या यस। मुझे और सही ये समझ में आ रहा है? वर्ल्ड में पहला सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है नियोम। ठीक है, हाँ जो हाँ कि ओके सऊदी अरेबिया में है। और उसके बाद हाँ सबसे हाँ सेकंड बिगेस्ट इज धोलेरा। धोलेरा इज बीन बिल्ट अच्छा ऑन 920 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, विच इज हम्म, डबल द साइज ऑफ दिल्ली, 6 टाइम्स हाँ हाँ द साइज ऑफ शंघाई। तो हाँ इतने हाँ बड़ा लैंड पार्सल इंडिया में इनको पोर्ट के पास हो, ठीक है, जहाँ पे सी पोर्ट भी पास में हो, रेल कनेक्टिविटी भी अच्छी हो, और एयरपोर्ट भी उसमें साथ में कनेक्ट हो सके, तो उनको एक ऐसा चंक यहीं पर मिला, तो उन्होंने सोचा इसको यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। दिस विल बी अ ह्यूज ओके अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट के पास भी यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा लैंड चंक पार्सल खुद के नाम पर अवेलेबल था, जिन्होंने बोला ओके हम अपने इस लैंड पार्सल में हम अपना तो खुद साथ में डेवलप करते ही हैं, लेकिन हम इसके आसपास जो है लैंड पूलिंग करके हम के फार्मर्स से ये लैंड लेकर इसको हम पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा एक शहर बना सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, थैंक यू रुपिंदर जी। सो मीनाक्षी जी, रुपिंदर जी ने बोला कि 2012 2014 से इसका इनिशिएशन हुआ था, एंड इट्स बीन 10 years since then, more than 10 years, ठीक है? तो वी वांट टू नो व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ दिस सिटी। क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है? व्हेन वी से इंडस्ट्रियल आउटलुक के हिसाब से हम लोग क्या क्या डेवलपमेंट ऑलरेडी देख सकते हैं सिटी में? एक तो बिफोर आई गो इनटू क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड फ्यू थिंग्स। जो धोलेरा है, एज रुपिंदर ऑलरेडी मेंशनed, इट इज spread across 920 square kilometers of the area, and this राइट entire area is divided into town planning schemes. Further, they are divided into sub town planning schemes. Then this area is divided into proper zones, so we have residential zones, commercial zones, city center, industrial, knowledge and IT parks. So all the one on the map you see on the screen, it is like all different zones of Dholera, right? नाउ ये जो जोनिंग की गई टाउन प्लानिंग स्कीम्स के आधार पे पूरा शहर बनाया गया एंड ऑल दोज थिंग्स, सो देवर लाइक बिग मल्टीनेशनल कंपनीज विच वर हायर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। जैसे एकॉम एक कंपनी है, फिर इसके बाद हेल्को एक कंपनी है। ये ऐसी कंपनीज हैं, लाइक वो जायंट कंपनीज जो कि बड़े बड़े शहर ऑलरेडी निर्माण करती हैं टाउन प्लानिंग के आधार पे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, चाहे वो वेदर इट इज लाइक यूरोपियन कंट्रीज और समथिंग लाइक दैट।
नाउ कमिंग टू धोलेरा, धोलेरा जो है एक प्लैंड सिटी है. There is a white paper in fact which says why it takes a decade to plan a greenfield smart city, to plan a greenfield smart city. Now जितनी प्लानिंग हमारी प्रॉपर होगी उतना ही हमारा इम्प्लीमेंटेशन और जो ऑपरेशनल पीरियड होता है, हमारा एग्जीक्यूशन का जो पीरियड होता है वो उतना ही स्मूथ होगा, राइट? एंड दैट इज द Dholera is best example of those things. What we used to see on piece of papers on maps that this is in planning and stuff, that is what we see on ground now. After, like, 10 years, we see that on ground. And the best part is there is no deviation about that. So what government has planned or the way it was conceived, it was the okay इस तरह से ये बनेगा. दैट इज व्हाट वी सी ऑन ग्राउंड नाउ. एंड आज के डेट में जब हम स्थल पे देखते हैं, हमारे को एक अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे है which is a 109 kilometers का stretch which is going to connect Dholera to Ahmedabad as well as Bhavnagar. So इसका लगभग 70-80% काम हो चुका है. एंड दिस प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी अंडर NHAI. NHAI काम कर रही है प्रोजेक्ट पे. और मोस्ट लाइकली इसका जो इनॉग्रेशन होगा, आइदर इट इज लाइक December this year only, or it will be like first quarter of next year, something like that. Yeah, so to that level work is completed. हम लोग तो ऑलमोस्ट रोज ही धुलेरा जा रहे होते हैं, तो वी सी दैट एवरी डे कितना 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 हो गया है. यू नो Right. देन देर इज दिस हमारे धुलेरा का नगीना उसको बोलते हैं हम लोग, ABCD बिल्डिंग. सो एवरीवेयर ऑन नेट ऑल्सो यू विल सी दैट. So that is basically an administrative cum business center for Dholera, which is Yeah. partially operational. और अब ये ऐसा लगता है यार छोटी सी बिल्डिंग है 6 माले की, तो ऐसे बोलते हैं 72 करोड़ के खर्चे पे तो क्यों ही बनी होगी. व्हाट इज, ऐसा तो है नहीं कि एक ऐसी 6 माले की बिल्डिंग पे 100 करोड़ का खर्चा लगेगा. सो दैट इज Right. प्राइमरली बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग विच इज टू बी यूज बाय डिपार्टमेंट्स, जो मतलब अपना सरकारी अधिकारी बैठेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स. But with this, from this building, the entire system of the Dholera is going to run. जिसे हम कहते हैं ना कि जैसे स्मार्ट सिटी है, तो व्हाट इज स्मार्ट अबाउट द सिटी. सो इट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद ICT, IoT एनेबल्ड टेक्नोलॉजीज. और फिर अपना जो पूरा कंट्रोल या मैनेजमेंट जो होगा, इट इज गोइंग टू बी डन फ्रॉम दिस प्लेस ओनली, विच इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर Dholera. एंड Right. धोलेरा इज सच अ सिटी जिसमें कि पूरा एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा. एंड दैट टू इज गोइंग टू बी हैंडल्ड फ्रॉम ABCD बिल्डिंग ओनली. फिर Understood. हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं. सो देर इज दिस एरिया जिसको हम एक्टिवेशन एरिया के नाम से जानते हैं, जिसमें लगभग 75 किलोमीटर का रोड्स एंड ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है. सो आज की डेट में अगर हम धोलेरा विजिट करने जाते हैं, स्थल पे जाते हैं, सो वी आर एबल टू सी लाइक दोज बिग TP रोड्स, 55 मीटर की DP रोड्स, 70 मीटर की DP रोड्स, दे आर ऑलरेडी डिजाइंड. एंड द ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज ऑल अंडरग्राउंड, दैट दोज डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स के एवरी 500 मीटर पे हमारे पास डक्ट्स होंगे, कि सारा कुछ वहीं से अंडरग्राउंड ही होगा. ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर कुछ काम हो रहा है और फिर एवरी बारिश आ गई तो हमारे को फिर से खोद काम करना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव इज कि अनदर like 4 or 5 decades, forget about digging. So that is how the infrastructure of the city is going to be built. Yeah. Right. Got it. Then there is one very another thing that is coming up in Dholera, and it is going to be world's largest solar park, which will be built in Dholera. धोलेरा I see. हैव एम्पल अमाउंट ऑफ लैंड. तो वो जो लैंड है ना, उसका बहुत सलीके से यूज हो रहा है एक्चुअली. सो दिस सोलर पार्क इज स्प्रेड अक्रॉस 150 एकर्स ऑफ लैंड, 158 कुछ है. और जिसमें 5000 मेगावाट एनर्जी जनरेट होगी, आउट ऑफ विच फेज 1 का जो काम है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है. सो टाटा पावर इज ऑलरेडी ऑपरेशनल देयर विथ 300 megawatts in one of the villages called Mahadevpura, and 100 megawatts in one of the villages called Pacham. Yeah. Okay. फिर आप थोड़ा थोड़ा आगे देखेंगे. नाउ धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब लोगों ने सुना होगा, एयरपोर्ट एयरपोर्ट आ रहा है. फाइनली उस एयरपोर्ट का काम चालू हो चुका है. उस एयरपोर्ट की जो भराई थी, लैंड फिलिंग, इट वाज अ हरक्यूलियन टास्क फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने पिछले मेरे ख्याल 1.5-2 साल से बहुत रिगरस काम करा है. 1426 हेक्टेयर की जमीन की फिलिंग हुई है. सो इट्स नॉट दैट
इजी Oh my थिंग। God. 2 रनवे का ये एयरपोर्ट बनेगा, जिसका टर्मिनल बिल्डिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट असाइन हो चुका है। एंड दिस इज गोइंग टू बी बोथ पैसेंजर एंड कार्गो एयरपोर्ट, Hmm. which will have MRO and all also, that we will discuss in later part of the presentation। फिर अदर देन दैट रिन्यू पावर करके कंपनी है जो कि सोलर कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है। रिन्यू पावर इज ऑलरेडी पार्शली ऑपरेशनल, जो कि धोलेरा में एक्टिवेशन एरिया में उनको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जमीन एलोकेट करी है। सो विद सम बेस दे आर पार्शली ऑपरेशनल। देर आर ऑलरेडी आई थिंक सम 700-800 लोग काम कर रहे होंगे आज की डेट में। फिर ये जो आप छोटा सा ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड ऑल। सो Hmm. यस, दैट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑल्सो काम, मेरे ख्याल से 80-90% ऑफ द वर्क ऑफ दैट ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑल्सो डन। सो ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके विच गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन। एंड फ्रॉम Hmm. लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, 4-5 साल से ये चीजें बन रही थी, और अब आज की डेट में वी आर एबल टू सी देम ऑन ग्राउंड। Got it. Okay. So Rupinder ji, why don't you take us, through the journey of smart homes? कि चालू कैसे हुआ, या आपको क्या डोलेरा के बारे में इतना attractive लगा that you wanted to start your business? And are you only Dholera focused, or are you also spread outside Dholera, outside Gujarat? Tell us more about smart homes. दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो Uh-huh. 2013 के आसपास, टिल दैट टाइम वी वर मोर इनटू टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस। Oh, फिर I see. उस टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने Hmm. उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो उसमें क्या है, आप एसेट्स नहीं बना सकते हो, इट्स ऑल Hmm. सर्विस बेस्ड इन इंडिया, Hmm. या फिर Hmm. प्रोडक्ट बेस्ड लाइक फेसबुक। तो वेयर विनर टेक्स इट ऑल। तो वी थॉट दैट इतना हम लोग फोकस करके काम कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट बिल्ड समथिंग विच इज एसेट बेस्ड। और एसेट Okay. बेस हो, और एसेट को कितना भी ग्रो करें, और समथिंग लाइक रियल एस्टेट और लैंड और प्रॉपर्टी वो Hmm. अप्रिशिएट करती है, और एसेट बेस की मार्केट कैप हमेशा इंक्रीज होती है। Hmm. तो Hmm. हमने उस रिसर्च को चालू किया। फिर हमने सोचा चलो कभी गुड़गांव में करते हैं, कभी हम नोएडा में करते हैं। फिर इसको रिसर्च करते करते ये देखा, यार यहाँ तो ऑलरेडी डीएलएफ जैसी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी 25-30 साल से काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी Right. एक पोजीशन को सीमेंट कर लिया है और उतना Hmm. बड़ा ब्रांड बना लिया है कि अगर हम आज वहां पे जो एग्जिस्टिंग ब्राउन फील्ड सिटीज में हम काम करेंगे, तो हम तो पूरे भीड़ में गुम हो जाएंगे। तो Hmm. हमें कुछ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहां स्क्रैच से काम चालू करें, और पूरा Hmm. पूरा प्लेग्राउंड हमारे हाथ में हो, और उसको हम ऐसा ब्रांड क्रिएट करें जिसमें हम पूरा मार्केट शेयर में हम मेजर प्लेयर बन सकें। तो Hmm. दैट वाज Hmm. द टाइम ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज अनाउंस हुए। तो उसमें से अच्छा. एक अमरावती हुआ, एक धोलेरा हुआ, फिर छोटे छोटे और भी हुए, शेंद्रा, बेटकिन। तो हम उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद ये देखा कि ये तो एक तो गुजरात में है, जहाँ पर बिजनेस Hmm. एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है बिजनेस के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट भी स्टेबल है, और ये पूरा Hmm. ग्रीन फील्ड है, स्क्रैच से चालू किया जा सकता है। और बॉटम जी, लेवल जी. से चालू करके ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स डाल के, ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर करके, एक तो एप्रिसिएशन की जा सकती है, और Hmm. इन्वेस्टर्स के लिए वी कैन मैक्सिमाइज मनी, वी कैन मैक्सिमाइज अच्छा. रिटर्न। Hmm. तो Hmm. Hmm. वहां से ये आइडिया क्रिएट हुआ। फिर एक दिन मेरा मन निकला और मैंने बोला चलो अब मैं गाड़ी लेके ही निकलता हूँ, धोलेरा घूमने चले जाते हैं। तो दिल्ली Hmm. से निकला सुबह, और नेक्स्ट डे आई रीच धोलेरा। तो मैं फिर वहां अरे पे बाप जाकर रे. रिसर्च चालू कर ली, गाड़ी में ही हाँ. वहां पे। और फिर आई स्टेड देयर फॉर अराउंड अ हाँ. ईयर इन धोलेरा। और वहां पर पूरा रिसर्च किया, पूरा सारा निटी ग्रिटीज को समझा, हाउ द लैंड Hmm. एक्विजिशन प्रोसेस वर्क्स हियर, और यहाँ पर Hmm. कैसे सारा एनएनओसी लिया जा सकता है, कि सीएलयू लिया जा सकता है, सारे प्रोसेसेस को समझा, यहाँ का Hmm. बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा। एंड देन वी डिसाइडेड चलो अब हम स्मार्ट होम्स अपना पहला प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करती है। बाय 2015 वी लॉन्च्ड अवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। Okay. और Okay. उसको, और Great. हमें बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस मिला। तो हाँ. फिर हमने उसके बाद 2016 में दूसरा, 2017 में, ऐसे करते हम 18। तो टिल डेट वी हैव गॉट समवेयर अराउंड 22 प्रोजेक्ट्स जो हमने धोलेरा में लॉन्च किए, और आगे हाँ. चल के अंदर 15-20 प्रोजेक्ट्स वी आर गोइंग टू लॉन्च। Oh, और इस wow.
और इसमें ये रहा कि कैपिटल एप्रिसिएशन कस्टमर्स को भी बहुत अच्छा मिला, अराउंड 5 to 10 times मिला, और हमारे प्रोजेक्ट्स को भी बहुत ज्यादा विजिबिलिटी मिली। हम्म ठीक है। और हमने अपने लिए स्केलेबल लैंड बैंक भी बना लिया, और हम्म इसके साथ साथ हमने इसके बाद अपना फोटे क्रिएट किया लैंड एक्विजिशन का। तो अब हम्म। यहाँ पर हम इनसाइड एसआईआर एंड फ्री जोन, जो एसआईआर के बाहर है, हमने वहां पर लैंड एक्विजिशन का काफी सारा काम चालू किया। मेजर पार्सल्स इन थाउजेंड्स ऑफ एकर्स हमने यहाँ पर एक्वायर किया, कुछ को प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया, और वो ये प्रोजेक्ट्स की आप देख ही रहे हैं, 22 प्रोजेक्ट्स हमारा इसमें स्लाइड में दिख ही रहे हैं। प्लस हम्म उसके साथ साथ हमने लैंड एक्विजिशन किया, हमने इन्वेस्टर्स को लैंड एक्वायर करके फर्दर री इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज दी, एंड वी हम्म। क्रिएटेड अ ह्यूज पोर्टफोलियो ऑफ लैंड बैंक Right. in the Okay. last 10 years time. So what I understand is you have a portfolio of around 42 projects. Yes, 2022 have already been done and 20 more are in the pipeline, right? pipeline, yes. That's huge. That's huge. Sir, you mentioned this concept of SIR. Hmm. क्या आप और इलेबरेट करेंगे इस पे? मीनाक्षी जी, रुपिंदर जी जैसे भी, मतलब थोड़ा और बताइए, SIR है क्या? What does it mean? What importance Yeah. does it hold in Dholera? Sure. So basically जैसे हम बोलते हैं ना, धोलेरा एसआईआर इज अ स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। और अच्छा। गुजरात में या 2009 में विधानसभा में एक एक्ट पास हुआ था, एसआईआर एक्ट। यू नो द वे वी हैव Okay. एसईजेड्स एंड इन्वेस्टमेंट रीजन्स Yeah, लाइक yeah, yeah, आईआरs, या सो yeah. सिमिलरली वी हैव एसआईआरs एज वेल। गुजरात में Uh-huh. देयर इज दिस स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, वन इज इन धोलेरा, देन देयर इज अदर एसआईआर आल्सो। जैसे Hmm. मंडल बेतवा जी करके जगह है, वहां पे भी एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है। And ठीक। usually these regions, whether it जैसे SEZs बनाते हैं या ये SIRs बनाते हैं, Hmm. state governments form these particular regions. Basically they invite industries or companies to come work there. We will give you some benefits with respect to the subsidies in various forms and all, ताकि Hmm. obviously एक तो अपनी स्टेट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नई नई आती हैं, स्टेट में रेवेन्यू जनरेशन भी होता है, राइट? So now Hmm. जो Dholera SIR है, Dholera SIR, as I said, it is 920 square kilometers. It is comprised of 22 villages. दो अच्छा। 22 गांव है धोलेरा तालुका के, जो कि Hmm. SIR एक्ट में नोटिफाई हुए। Hmm. Now there are other villages also which are not notified under SIR Act. So they we call them as free zone, कि मतलब वो Hmm. SIR Act में notified villages नहीं है, so they lie in free zone. So that's the reason why they called free zone. That's the reason. Okay. 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 Got it. Got it. So, ma'am, tell us more about Forest Estate then. Let's move on to this particular project जहाँ पे Anurag and Smart Homes have partnered together. So, tell us about Forest Estate and if you could just give us a picture of कि कितना investment पे return भी आ सकता है broadly. Why is it so attractive an investment? Sure. धोलेरा फॉरेस्ट एस्टेट जो है ना, दिस इज नॉट ओनली स्मार्ट होम्स, बट धोलेरा में भी दिस इज वन ऑफ द largest, biggest, wonderful projects. So it is spread across 2 lakh square yards of land, and which is expandable to another 2 lakh actually. The way land अच्छा। acquisition has been done, yeah. So the way land acquisition has been done for this particular project, it was like it was in mind कि एक township design करनी है। Hmm. टाउनशिप ऐसी डिजाइन करनी है जहाँ पे रेजिडेंट्स रहेंगे भी, वहाँ पे कमर्शियल स्पेसेस भी होंगे, और Hmm. हो सकता है अब आगे आने वाले टाइम में स्कूल का भी कुछ प्रोविजन वहाँ पे हमारे को समझ में आ गया है आज की डेट Hmm. में। और Hmm. तो द वे लैंड एक्विजिशन हैज बीन डन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। जो 2 लाख स्क्वायर यार्ड पे अभी है, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 1200 रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 50 कमर्शियल प्लॉट्स, लगभग 20,000 स्क्वायर यार्ड्स इज गिवन टू कॉमन एमिनिटीज। So this Hmm. project is going to have a lot of amenities, starting Hmm. from the clubhouse to temples to kids play areas, मतलब अलग अलग होंगे। kids play areas भी 4-5 अलग अलग जगह पे होंगे, क्योंकि जगह बहुत बड़ी है। And entire thing is going to be the landscaping and all, जो पूरा सारा entire thing is going to be designed in a forest theme based, yeah.
So I think it is going to have some what 40,000 trees or something. 40,000 trees, yes. 40,000 trees we are going to plant in this. हम लोग अपनी खुद की नर्सरी डाल रहे हैं 3 जगह पे, अपने 3 जो मतलब खेत है वहाँ पे नर्सरी डाल रहे हैं स्पेसिफिकली ये ट्रीज वाला कॉन्सेप्ट को करने के लिए. सो आइडिया बिहाइंड फॉरेस्ट वाज बेसिकली एक ऐसी टाउनशिप बनानी है जैसे फॉर एग्जांपल गोदरेज प्रॉपर्टीज की टाउनशिप है अहमदाबाद में, गोदरेज गार्डन सिटी करके, विच इज स्प्रेड अक्रॉस आई थिंक 220 एकर्स ऑफ लैंड. सिमिलरली Yeah. शांतिग्राम, रानी शांतिग्राम है, वो लगभग Yeah. Yeah. 580 एकड़ ऑफ लैंड पे है. नाउ व्हेन यू आर इन अ सच बिग टाउनशिप, आप एक तो रेजिडेंट्स के लिए अंदर ही बहुत सारी सुविधाएं होती हैं. और आफ्टर अगर हम देखें आफ्टर कोविड ना कम्युनिटी लिविंग और टाउनशिप लिविंग जो होगा बहुत ज्यादा कल्चर भी आया है. व्हाई? बिकॉज it is safest way of living also, and then you have people around you when you are in bad times. जैसे कोविड तो किसी को पता ही नहीं था ऐसा होगा. सो आइडिया वाज कि टू क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट कि जिसको हम एक सस्टेनेबल भी बनाए और ऐसा ग्रीन, उसमें इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आ गया फिर तो नाम ही हमारा उसका फॉरेस्ट एस्टेट पड़ गया. एंड विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट्स व्हाट बेटर देन धोलेरा. मतलब धोलेरा में तो I may sound bullish or something, but actually it is like 5 साल में 5 गुना type. Actually, it is going to happen because we have seen last 5 years also. We have seen Yeah. last 10 years also. Where Yeah. kacha biga used to be 4 lakh rupees, 5 lakh rupees a biga. Same kacha biga we buy at 60 lakh rupees, 70 lakh rupees a biga. Yeah. What we used to sell at 700 rupees per square yard, 800 rupees per square yard. धीरे धीरे करके वो 3,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, 4,000, 5,000, 7,000. नाउ दैट इज अ जेनेरिक एक रेट ऐसा हो गया है. और ये कोई ऐसा नहीं है कोई मैजिक बैंड है या कोई बबल है फूट जाएगा या वॉटेवर. एक इमर्जिंग सिटी है. ये गुड़गांव है 1980 अर्ली 80s का, when Maruti and Suzuki had a joint venture and they started that plant in Gurgaon. तो ये गुड़गांव है early 80s का. So it is not any fluke, it is not any magic numbers या ऐसा, या कोई बबल भी नहीं है. It is real time thing happening. एक हमारे इनफैक्ट मैं तो ऐसा कहती हूँ हमारे जीवन काल में एक ऐसा शहर बन रहा है जो जीरो से बन रहा है, जिसको हम मतलब आंखों से देख रहे हैं. वो चूना मार्किंग हाईवे की हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखी है. सो दैट्स अ Got it. So, ma'am, like I understand, आप इतना अच्छा कर रहे हो डोलेरा में. You have so many projects. Forest estate के लिए आपका vision बहुत बड़ा है. Then why partner with us? Why partner with Amarok? Why did you think good of getting into partnership? question. स्केलेबिलिटी का ऐसा अम, दौर है अभी धोलेरा में फॉर स्मार्ट होम्स. Yeah. probably रुपिंदर विल elaborate this more, but I will just say one line कि स्केलेबिलिटी का इतना स्कोप है ऑलरेडी for us and in Dholera. So if companies like Smart Homes and Enerok, Hmm. the synergies lie with that, जब मंदिर ने बोला ना वो फर्स्ट लाइन वैल्यू ओवर Hmm. वैल्यू, वो सब Hmm. कहीं ना कहीं हमारी वो एनरॉक के साथ वो सिनर्जी वो मैच करती है. एंड अच्छा. लेट अस टॉक अबाउट स्केलेबिलिटी. Scalability mein, see, Anorok is into multiple cities, main Yeah. thing. And second thing Yeah. is they have network of channel partners and Yeah. the which is backed and integrated properly with the technology. Hmm. Hmm. So, Hmm. with such a greenfield project of such a big scale, and Smart Hmm. Homes being one of the top brands in Dholera, we Hmm. want Hmm. that we should reach a maximum number of investors in minimum number of time. Yes, Uh-huh. and that scalability, we need to partner with someone who has that kind of muscle. Right. Yeah, and who have the technology to scale it up in Hmm. small period of time. So Hmm. we Hmm. plus we also have seen the processes that Anorok follows and the processes Hmm. that we follow. They are very Yeah. similar. They have I Yeah. have seen 70 to 75% similarity in the process, and with time to come, this will grow further to 85, 90%. So I'm sure. that kind of scalability, if we see if things are clicking well, so it is like एक और एक 11 that is going to Oh, happen. And love. we also see that Anorok भी इतनी आसानी से किसी और को पार्टनर नहीं बनाएगा धोलेरा में, और हम भी किसी और को पार्टनर नहीं बनाएंगे इतनी जल्दी से किसी को. Right. I actually So remember sending a few Instagram ads and creatives to Mandir on WhatsApp. और अब मुझे समझ में आ रहा है वो सारे उन्होंने क्यों रिजेक्ट किए.
हाँ। स्मार्ट हाँ। होम्स के साथ ही क्यों पार्टनर किया? सो मनदीप, ऑन दिस नोट, व्हाई डोंट यू टेल अस कि चैनल पार्टनर्स वर्किंग विद अस, इसका क्या बेनिफिट है, क्या प्रोसेसेस हम लोग फॉलो करते हैं एट एनारॉक कि चैनल पार्टनर को पता चले? फॉर एग्जांपल, मैं चैनल पार्टनर हूँ, मेरे लीड ने विजिट किया, इस पे मुझे विजिबिलिटी कैसे मिलेगी, मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा, एसओपीज क्या होंगे जो चैनल पार्टनर्स के लिए सब कुछ कंफर्टेबल करेंगे? टेल अस अबाउट दैट. Thanks, Vidya. Thank you, Rupendra ji and Meenakshi ji, for your all kind words. I am sure we'll scale it up to the heights we need, and special mention to the values we align. So, Vidya, to answer your question for channel partners, see, the entire agenda of today's call is all about our partners, our future Hmm. partners. So Right. there are a couple of things that I want to highlight. The first thing is that I also have a fundamental question: ki as a channel partner, why should somebody work with this combination of team of smart homes and Arrow? Then I Yeah. would say कि see everybody is looking to explore Dulera as an option. Hmm, बट क्या hmm, hmm. होता है कि एट टाइम्स यू आर एबल टू कम अहेड, अभी आप कहीं गुड़गांव में हो या फिर भोपाल में बैठे हैं, इंदौर में बैठे हैं, यू आर सिटिंग आउट एट डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया. इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली नो कि दुलेरा में क्या हो रहा है. समबडी सम नेविगेशन इज नीडेड. सो वन, Hmm. वी आर ब्रिंगिंग अ ट्रस्टेड सॉल्यूशन कि एज एन औरक बीइंग अ brand, at least our CPs don't have to worry about the basic things, about the transparency, about the values, about the commissions. Hmm. And then even most important कि जो मैं मेरे इन्वेस्टर्स को बिठाएगा, they should Hmm. also not be worried. There have been many incidences. जब मैं दुलेरा के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो बहुत बार ऐसे भी मेरे को केसेस पता चले हैं कि जहाँ पर एक डेवलपर ने 4 बार प्लॉट बेच दिया. बहुत अलग अलग तरह के कमिटमेंट्स हुए हैं. तो आई वॉज एक्चुअली मोर वरीड ऑन दैट फ्रंट विद स्मार्ट होम्स दैट इन बीन टेकन केयर ऑफ. तो वही Hmm. पैकेज आई थिंक चैनल पार्टनर्स को मिलता है, जहां पर उनको सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को इंट्रोड्यूस कराना है. रेस्ट Hmm. दे आर इन द सेफ एंड वन. सेकेंड, इवन द क्लोजिंग पार्ट, हम इतने साल से मीनाक्षी जी, रुपेंद्र जी दुलेरा में काम कर रहे हैं, तो जो भी उनके इन्वेस्टर्स को हेल्प चाहिए, इट इज जस्ट नॉट दुलेरा फॉरेस्ट एस्टेट. आज अगर अपने चैनल पार्टनर कोई भी इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं और हमें उनसे बात करके लगता है कि उनके लिए ए नहीं बी प्रोडक्ट अच्छा है, बी प्रोडक्ट नहीं सी प्रोडक्ट अच्छा है, मे बी उनको प्लॉट नहीं बेचना चाहिए, सीधा लैंड देना चाहिए, तो जो भी जी. उनके इन्वेस्टर्स के हित में होगा दैट विल बी गिवन. सो वन, दे कैन बी रेस्ट एश्योर्ड देयर इन्वेस्टर्स आर गाइडेड राइट. सेकंड, दे Hmm. डोंट हैव टू वरी अबाउट कि ऐसा कुछ चीटिंग तो नहीं हो जाएगा. Hmm. तीसरा, देयर इज एंटायर ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम. Right. Got it. Got it. So, Mandir, while our channel partners associate with us, bring leads, how will we help them with marketing and promotion? हमारी सो साइड से क्या हेल्प मिलेगा? we have created a digital kit one. Second, हाँ, हाँ. also what we are doing is through our NRO Gujarat Genie system that we have in place, there will be a regular list, media sharings, articles will be shared, digital kits will be there. So there will be a regular touch base to all the channel partners with us, so that they are updated, and also in case they want to share anything and everything, they can share it with their respective investors. All the media that we will be sharing will be without mobile numbers or without details, only focused on Dolera. वो बनाया ही Hmm. ऐसा जाएगा कि जिसको हमारे चैनल पार्टनर्स आगे यूज कर सकते हैं और अपना लीड जनरेट कर सकते हैं. Okay. Genie meaning आप बोल रहे हो हमारा AI bot, right? Chat bot. हाँ, so what we have done is there is, I think we'll cover it in the towards the end of the presentation, wherein we will show a Yeah. video that इनका हाँ. process कैसे होएगा. हाँ, ठीक है, ठीक है. Okay, done. And what would be the, I mean, are there any special incentives and offers for our channel partners? If yes, then, also elaborate on that, Mandir. So what we have done is हमने ना हमारा structure थोड़ा अलग रखा है, wherein we are trying to offer as much we can. So there are two kind of incentive or maybe a fee slab. एक तो हम Okay. बोल रहे हैं कि अगर आप normal जो brokerage slab होता है आप sell करते हैं, and we you get a brokerage on that, wherein if you sell about 1 to 5 units you get 10%. If you sell Hmm. about 6 to 10 units then it is 12.5%. आप Hmm. 11 and above काम करते तो 15% होता है. टिपिकली ये विंडो महीने का होता है, बट एज एन इंट्रोडक्टरी हमने 3 महीने का रखा है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पुट टुगेदर भी अगर आप ये कोई भी माइलस्टोन अचीव करते हैं, तो आई थिंक जी. अगर कोई भी चैनल पार्टनर बेसिक भी काम करेंगे तो 10 प्लॉट बेचना दुलेरा में वो छोटे नंबर है, ये टिपिकली एक Hmm. महीने में पूरा हो जाता है. तो वी Hmm. कैन एम एट 15%.
एंड हम्म। ऑल्सो वी आर सेइंग कि अगर आप एक चैनल पार्टनर है जिनका होल्ड अच्छा है, आप और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं और ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, सो वी आर सेइंग हम आपके साथ ना एक रेट फिक्स कर लेंगे कि मान लो मेरा प्रोडक्ट का एक्स रेट है, आप बोलो कि मेरे पास उसमें हम चाहते हैं कि कम से कम 25 प्लॉट का डील हो, दैट कुड बी 25। नॉर्मली ऐसे डील हमारे 50-50 प्लॉट के, 100-100 प्लॉट के होते हैं। तो अगर कोई राइट। सीपी है वो बोलते हैं कि भाई मैं 25 प्लॉट और आपके उठा लेता हूँ, मुझे रेट दे दो, मैं इतने टाइम में आपकी पेमेंट करा दूंगा। तो हम हम्म। उनको एक कस्टमाइज रेट भी दे सकते हैं, तो वो सीधा सीधा दे कैन अर्न मच मोर देन दे कैन डू। सो ये दो तरह के हमारे फी स्ट्रक्चर रहेंगे। दिस इज ऑसम, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है, कीपिंग इन माइंड कि इन्वेस्टर्स भी आएंगे बहुत सारे। दिस इज लवली। और फिर ब्रोकरेज कब मिलेगा मंदिर? सो इफ आई एम अ चैनल पार्टनर, आई सेल सर्टेन लैंड पार्सल, सर्टेन नंबर, कब मिलेगा मुझे मेरा तो ब्रोकरेज? टिपिकली ना इसमें क्या होता है, दुलेरा के अंदर ना वो टाइम ड्यूरेशन इज वेरी वेरी लेस। आप जब बेचते हैं और उसका हाँ। दस्तावेजी 2-3 महीने में हो जाता है, तो हाँ। टिपिकली यहाँ पर वैसा जो चलता है आपका दस्तावेज पर आता है। बट हमने एक इसमें माइलस्टोन ऐड किया है कि आप जैसे ही जी। आपका 30% पेमेंट आता है, 11-12 लाख रुपए का प्लॉट होता है, तो जैसे ही उसका 2-3 लाख रुपए जो 30% पेमेंट होता है, आपका 50% पेमेंट रिलीज कर देंगे। और जैसे ही हम्म। उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, विच टिपिकली टेक्स अबाउट 2 to 3 months, रेस्ट 50% इंश्योर कर देंगे। तो दो स्टेप्स अच्छा। में आपका ब्रोकरेज रिलीज होएगा। एंड हमने ओके। सिस्टम कैसा रखा है ना, व्हाट वी हैव डन इज हमने मतलब एवरीबॉडी नोज एज एनालॉग वी आल्सो गेट सर्टेन पॉइंट। तो हमारा और चैनल पार्टनर का हमने बिलिंग माइलस्टोन सेम रखा है। तो वो जैसे अच्छा। ही हम प्लॉट्स बेचेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम जब बिलिंग माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं, तो हम साथ में ही चैनल पार्टनर का सामने से ही बता देंगे डेवलपर्स को, रुपिंदर जी को और मीनाक्षी जी को भी, ये चैनल पार्टनर का ये स्लैब पूरा हो गया, और हम सामने से कॉल करके भी आप इनवॉइस डाल दो और पेमेंट कर देंगे, मंथली एक्सेस होएगा। तो हमारा कोशिश क्या है कि चैनल पार्टनर जो हमारे हैं वो एक ही चीज पर फोकस करें कि मैं कैसे इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस कराऊं। उसके हम्म। बाद में सारा कुछ हम देख लेंगे, उनको कैसे समझाना है, कैसे समझाना है, कैसे क्लोज करना है, उनका पेमेंट, उनका आना ले जाना करना, उनका सिलेक्शन कराना, फिर उनका पेमेंट होने के बाद में इनका ब्रोकरेज रिलीज कराना, हिसाब रखना, वो सब कुछ वी विल टेक केयर। Hmm, understood. So, okay, so broadly, this covers everything that we had on our agenda. We covered Dolera, we covered smart homes, we covered forest estate, we covered Analog, channel partner ka Sara process. But besides that, everyone in the audience, if you all have any questions, we now have the window open. Please ask us your questions. You can put it in the chat, or if you have the facility to unmute yourself, you can unmute yourself and ask. Please go ahead. So I think we'll have to put the questions in the chat box only in case there is Yeah, any. I unmuting. can see Yeah, six yeah. questions from. Just so size and prices पूछ रहे हैं अंद्रेश जी। सो अंद्रेश जी, साइजेस इज अबाउट 100 and 150 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होता है, 150, 160, 75, 200। तो आप मान के चलिए 150 से 400, 450 गज के प्लॉट है इसके अंदर। और प्राइसेस इज अबाउट 7,500 रुपये गज का प्लॉट है, जो अभी हमने रखे हैं, दी अदर चार्जेस। सेकेंड, सकेत पूछ रहे हैं व्हाट इज द लीगलिटी चेक्ड बाय एनारोक व्हाइल चूजिंग द प्रोजेक्ट। सो इसमें क्या होता है कि टिपिकली जब भी हम एग्रीमेंट करते हैं ना किसी भी डेवलपर के साथ में, तो उनका रेरा मस्ट होता है, उसके बिना हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। और अगर रेरा नहीं होता है, जैसे गुजरात के अंदर एक एक्ट है, गुजरात रेरा बोलता है कि अगर आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बाहर है, तो आपको लोकल अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो उसका लोकल अप्रूवल्स हैज टू बी टेकन बाय द डेवलपर। वंस दे हैव टेकन द अप्रूवल्स, देन ओनली वी कैन टेक केयर। तो इस पे हमारा एक हद तक वी डू चेक द लिटिगेशंस, बट दैट डजंट बिकम आवर लीगल ऑब्लिगेशन। व्हाट इज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में अपने को सबसे इंपॉर्टेंट होता है म्यूटेशन करवाना। जब प्लॉट बिकता है ना, मतलब अगर आप प्लॉट ने बेच दिया, हमें क्या ध्यान रखना है, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं हो रही है, आप बाई चांस कहीं और भी प्लॉट लेते हैं धुलेरा में, तो आपको करना क्या पड़ेगा ना इसमें, आप एक प्लॉट आपने किया, रजिस्ट्री करा दिया, उससे ज्यादा जरूरी है आप म्यूटेशन कराओ। म्यूटेशन होएगा तो वो आपका रिकॉर्ड्स में चढ़ जाता है। एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं तो आपको एडवाइस करेगा, जब भी आप दोलेरा में काम कर रहे हैं, ऑप्शन इवेल्युएट कर रहे हैं, प्लीज आप थोरो रिसर्च करें। आई टोटली एग्री, इट इज अ वेरी टफ मार्केट। मतलब मेरे को समझिए ना 1.5 साल लग गया टू आइडेंटिफाई, मतलब जो आपका डर है ना आज की डेट में कि यार हम कैसे इन्वेस्टर्स को होगा क्या नहीं होगा, वो मेरा ही डर था।
बहुत मुश्किल से मीनाक्षी जी से और उपेंद्र जी से मिलके वो डर गया है कि नहीं, these are the right people to work in. But to be very very straight and simple, रिस्क तो देखो इन्वेस्टर का इसमें रहता है, जो हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि इट इज वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन। हाँ, आप एक किसी को जान के उनका बैकग्राउंड देख के क्या क्या काम हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारा होम लोन का टीम है, तो हमारा होम टीम ने भी काम किया है इसके ऊपर, बैंक्स को भी इसमें हम एंगेज कर रहे हैं, तो वी हैव डन अवर वन लेवल ऑफ चेकिंग्स by which we are confident on smart homes. But we will have to be careful with every transaction you do in Dolera. अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आपको डेवलपर का ऑथेंटिसिटी चेक करना पड़ेगा। इन स्मार्ट होम्स केस आई डोंट सी अ चैलेंज देयर। फिर एप्लीकेबल ऑफ रेट, यस यस मीनाक्षी जी। Yeah, I just an addition to what Mandeep said that legal documentation check करना बहुत ज़रूरी है एज अ चैनल पार्टनर आपके लिए भी, जब आप काम कर रहे हैं या किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो वेदर यू आर बाइंग मतलब उनको आप प्लॉट दिला रहे हैं या ज़मीन दिला रहे हैं, लैंड दिला रहे हैं, बड़े बड़े पार्सल दिला रहे हैं। सो वेदर जैसे हम बोलते हैं ना, कहीं कहीं जगह पे बोलते हैं फर्द, कहीं पे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, कुछ लैंड का। यूजुअली क्या होता है कि एज अ कंपनी व्हाट वी डू इज, हमने तो अपने प्रोटोकॉल्स बहुत क्लियर डिफाइन करके रखे हुए हैं कि जब तक हमारे प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं होती है, उसका मतलब क्या है कि नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन नहीं हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि इसमें रेजिडेंशियल भी है और कमर्शियल स्पेसेस भी है। कमर्शियल का मतलब ये नहीं है कि रोड की तरफ है तो हम उसमें बोल दें कि चलो ये सड़क की तरफ है तो आप इसमें कमर्शियल कर दो। बट फॉर दोज पर्टिकुलर सर्वे नंबर्स वी हैव अप्लाइड फॉर कमर्शियल प्लान पास। तो उसमें प्रॉपर कमर्शियल प्लान पास है जिससे हम एसयूओ शॉप्स वगैरह कल की डेट में कुछ बनानी है, शॉप्स बनानी है, ऑफिस बनाने, वो बना सकते हैं। तो सो वेदर नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन एनएनओसी जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, वो जरूरी है चेक करना। आपको ये जरूरी है चेक करना कि जिस जो जहाँ पे आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, क्या वो जमीन उस डेवलपर के नाम पर है या उसका सिर्फ कोई एक अग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट है। दिस इज फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, धोलेरा इज एन इमर्जिंग मार्केट। तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे नहीं होता कि चलो एक ट्राई मारते हैं, जस्ट देखते हैं। काफी अच्छे लोग भी काम करेंगे इमर्जिंग मार्केट्स में, और थोड़े रिस्क फैक्ट जो थोड़ा ज्यादा लेते हैं वो भी करेंगे, यू नो व्हाट आई मीन। सो आपको ये देखना है कि जो वो जमीनें हैं क्या वो डेवलपर के खुद के नाम पर है, क्या उसमें टाइटल क्लियर है, क्या उसका नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन हो गया है, क्या उसका प्लान पास हो गया है प्रॉपर्टी का, क्या इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो सकती है, अगर रजिस्ट्री हो गई है तो क्या इस प्रॉपर्टी की म्यूटेशन हो सकती है। एक प्लॉट पे 10 बार रजिस्ट्री, जब एक जो फर्स्ट रजिस्ट्री हुई है उसका दाखिला नहीं हुआ है रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में, तो अपने को वो भी साथ साथ में कराना है, अपने इन्वेस्टर को पूरा एंड टू एंड सिक्योरिटी देनी है। और दूसरी चीज क्या है, अगेन you everyone is from real estate field only, तो you understand very well कि जैसे कई बार होता है कि हमने सिर्फ कोई एक्स वाई जेड केस ले लें कि भाई फार्मर के साथ कुछ अग्रीमेंट वग्रीमेंट कर लिया और फ्लोट कर दिया प्रॉपर्टी, मतलब फ्लोट कर दिया यानी मार्केट में डाल दिया, प्रोजेक्ट डाल दिया मार्केट में। बट फिर कुछ झगड़ा हुआ फार्मर के साथ, अब वो प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में चला गया, फार्मर भी लटक गया, उसकी पेमेंट भी नहीं गई और हमारा इन्वेस्टर भी परेशान। तो एज अ कंपनी वी ओनली float our projects in the market for selling for an end investor once it is legally 100% clear. सेम गोज विद द लैंड पार्सल्स ऑल्सो, चाहे आप 10,000 बार का 10,000 स्क्वायर यार्ड्स का टुकड़ा ले रहे हो या 20,000 या 50,000 या 1 लाख स्क्वायर यार्ड्स का टुकड़ा ले रहे हो, हमारी स्मार्ट होम्स की इन्वेस्टमेंट उसमें उतनी ऑलरेडी हो चुकी होती है कि वो हमने यहाँ तो अपने नाम पे कर लिया होता है या हमने पावर ले ली होती है ना, ऑल दोज थिंग्स। सो विद रिस्पेक्ट टू द लीगल डॉक्यूमेंटेशन वी आर एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी आर वेरी स्ट्रांग, मतलब कोई हमारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन को चैलेंज नहीं कर सकता। बाकी हम लोग तो अपनी साइट वाइट पे ही डाल के रखते हैं, जैसे डिजिटल किट होता है ऐसे ही हम लीगल किट भी बना के रखते हैं प्रोजेक्ट का। तो आपको अपने क्लाइंट को भी दिखाना है या अपने एडवोकेट से भी चेक करवाना है, वो भी आप करा सकते हैं। And there is another question which says the airport is just two runways. How we could compare it to Gurgaon? एयरपोर्ट इज जस्ट, 2 runways. क्या करना है उसमें। Compare it with धुलेरा Gurgaon. में आई थिंक सिर्फ दो रनवेज है, आप गुड़गांव से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम भावेल सिंह। May I say something here? यस प्लीज। हाँ जी श्योर। Bhavesh, we aren't comparing the airport per se to Gurgaon's airport or Delhi's airport. When we were trying to explain the greenfield project of concept
we were trying to, give you references of a Gurgaon or a Dubai or any other greenfield city. We are definitely not comparing the airport to a Gurgaon airport. But for Dholera, however, it is appropriate and enough to take it has enough capacity to take that much load. Besides this, they will also share the airport that Ahmedabad has. So it's not very far. So there will be multiple infrastructure support from Ahmedabad and Gujarat as well. So Meenakshi ji, You Rupinder want ji, to add anything something? that you want to say? एयरपोर्ट जैसे अहमदाबाद का एयरपोर्ट है ना, वो फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, और डिस्ट्रिक्ट जो है धोलेरा की वो अहमदाबाद है. नाउ अहमदाबाद नीड्स अ सेकंड एयरपोर्ट, लाइक दिल्ली में जेवर की रिक्वायरमेंट है सेकंड एयरपोर्ट की. तो इन्होंने प्लान किया कि एक एयरपोर्ट ऐसी जगह बनाते हैं जो डीएमआईसी कॉरिडोर को भी सर्व कर सके, और दूसरा कार्गो और इंटरनेशनल पैसेंजर्स को भी वो हैंडल कर सके. और इसलिए इन्होंने एक और एयरपोर्ट बनाया 70-80 किलोमीटर दूर, जो कि धोलेरा के हैबिटेट्स को भी हेल्प कर सकेगा, और वहां पे कंपनीज को भी कार्गो की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेगा, और अहमदाबाद का जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक है वो भी हैंडल कर सकेगा. So I think just to summarize it, and Bhavya ji has a very valid point. What Bhavya ji is trying to understand, her question or his question is that आप गुड़गांव को और दुलेरा को कैसे कंपेयर कर सकते हैं. आप सही कह रहे हैं, गुड़गांव और दुलेरा का एज सच एज अ सिटी कोई कंपेयर नहीं होता. गुड़गांव आज की डेट में जो है, दुलेरा इज नथिंग नियर टूवर्ड्स इट. द एंटायर आइडिया इज, जैसे अभी दुबई है, दुबई और दुलेरा का भी कुछ कंपेयर नहीं हो सकता. कॉन्सेप्ट जो रुपेंद्र जी और मीनाक्षी जी बताना चाह रहे हैं कि कैसे एक शहर बिना किसी डेवलपमेंट से शुरू होता है और एक आने वाले 20, 25, 50 साल में एक बड़ा शहर बन जाता है. तो एग्जाम्पल ये है कि जैसे दुबई में कुछ डेवलपमेंट नहीं होता था, जब स्टार्ट हुआ तो देखो आज कैसा सिटी है. गुड़गांव जब मारुति उद्योग बहुत साल पहले नहीं आया था, बहुत साल पहले तक यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता था 1980s में. तो जब वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, मारुति उद्योग आया और आए, फिर डीएलएफ ने उस पर एफर्ट्स डाला, तो गवर्नमेंट का एफर्ट लगा, प्राइवेट प्लेयर्स का एफर्ट लगा, कंपनीज आई, तो जाकर के आज देखो कहाँ बना है. तो सिर्फ एक रेफरेंस है कि आज जो धुलेरा है, कॉन्सेप्ट क्या है. जैसे आज सिर्फ बंजर जमीन है, जब यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आएंगी, उसको सेटअप करने के लिए इकोसिस्टम आएगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाएगा, तो दिस कैन ऑल्सो रीच टू दैट लेवल्स इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वन सेकंड, हम आदित्य मेहता पूछ रहे हैं हम विजिट कैसे मैनेज कर सकते हैं. आदित्य, आपके क्लाइंट जो आप हम अभी आपको मैं दिखाएंगे, जब भी आप लीड देते हैं, आप या आपके क्लाइंट अगर आना चाहते हैं, आप नहीं भी आएंगे तो चलेगा, आपके जब भी क्लाइंट आते हैं, हम उनको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से पिकअप करके पूरा उनको एक्सप्लेन करके दुलेरा दिखा के वापस वहाँ ड्रॉप कर देते हैं. सो दैट वी विल मैनेज, चाहे आप आए या नहीं है चलेगा, लीड आपके पास रहेगा. फिर भाविया ये भी पूछ रहे हैं हाउ मच रिटर्न वी विल प्रोवाइड, मतलब व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ईयर ऑन ईयर. ठीक है, इट विल हाउ मच रिटर्न विल इट प्रोवाइड इन अ ईयर. तो आई थिंक भाविया 1 साल का तो ये नहीं है काम. दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, क्योंकि ये इट इज लाइक, हाँ हालांकि ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है. आज से थोड़ा टाइम पहले 3,000 में बिकता था, फिर 5-6 हज़ार का रेंज आया, अब वहां पर लोगों ने 11-11 हज़ार तक पहुंच गए हैं. तो ईयर ऑन ईयर नहीं है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट. एक चीज आपको क्लियर समझना है, आप और आपके इन्वेस्टर्स के लिए, कि कोई भी अगर दुलेरा में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका होराइजन आप 5, 10 या 15 साल का लेके चलिए. दैट इज वेयर पीपल विल बी एबल टू गेट गुड मनी. चाहे देखो सेल्स कम हो, कोई फर्क नहीं है, आप कम बेचे हम कच बेचे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सही गाइड करना है. हर एक प्रोडक्ट का एक अपॉर्चुनिटी होता है, एक रिस्क होता है. हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि वी हैव टू एक्सप्लेन अवर इन्वेस्टर्स द राइट अपॉर्चुनिटी एंड द राइट रिस्क अगेंस्ट इट. देन ही हैज और शी हैज टू टेक अ कॉल कि भी उनको आगे बढ़ना है कि नहीं करना. बट हम अपना इंटरेस्ट के लिए, अपना सेल के लिए वी कांट मिसगाइड. दैट इज व्हाट वी कैन अश्योर ऑन दैट फ्रंट. So I think I've seen all the questions. Any and the payment plan, yes. Payment plan के लिए मीनाक्षी जी, if you can quickly tell about the payment plan, please. श्योर. तो जैसे अभी आज के रेट में जो हमारा रेट है इसका, दैट इज 7500 रुपीज पर स्क्वेयर यार्ड, एंड 500 रुपीज डेवलपमेंट चार्जेस पर स्क्वेयर यार्ड. तो यूजुअली हम क्या करते हैं, एक बुकिंग अमाउंट लिया कस्टमर से, जैसे टोकन लेते हैं कस्टमर से, समझे किसी ने 51,000 का टोकन लिया, किसी ने 1 लाख का लिया, तो उस बुकिंग अमाउंट पे कस्टमर को बुकिंग लेटर, उसको रिसिप्ट वगैरह प्रॉपर मिलता है, एक वेलकम ईमेल एंड ऑल दोस थिंग्स ही रिसीव फ्रॉम द अकाउंट्स टीम. और उसके बाद फिर उनका एक डाउन पेमेंट आता है विद इन 7 डेज. डाउन पेमेंट इज वही 25-30% का डाउन पेमेंट होता है, जिसपे उनको
एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, and allotment letter with all the terms and everything. And usually if someone has opted for 2 months or say 3 months, 3 months is the maximum time period that we give. अगर बहुत ज्यादा कुछ किसी ने कोई बल्क और वो सब हो रहा है, so that is a separate thing, but usually this is what it is, 90 days payment plan usually we offer. उसको हम बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसकी डाउन पेमेंट देने के बाद इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर लेते हैं 3 महीने के। और जैसे जैसे उसकी पेमेंट्स आती है उसको रिसिप्ट मेल होती जाती है ऑटोमेटिकली यहाँ से। एंड फिर हम दस्तावेज लास्ट में दस्तावेज बना लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे लगेगी 5%, अगर सिर्फ फीमेल 4.9 एग्जैक्टली, इफ इट इज इन द नेम ऑफ अ फीमेल। इफ इट इज इन द नेम ऑफ अ मेल देन इट इज 4.9 प्लस 1% रजिस्ट्रेशन। और दिस इज हाउ इट इज। And बाकी possession timeline? या सो बाकी इसमें Possession जैसे timeline. जैसे इसमें दस्तावेज हो गया आपका, दस्तावेज के बाद लगभग अप्रोक्सीमेटली 45 to 60 डेज के अंदर म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन मतलब आपका 7/12 में मतलब जो प्रॉपर्टी कार्ड बनता है पर्टिकुलर, वो आपका बन गया, रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में आपका नाम आ गया। सो टेक्निकली यू ऑलरेडी हैव द पोजेशन नाउ बिकॉज इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इट इज ऑलरेडी इन योर नेम। हाउएवर जो हम लोगों ने टाइम स्पैन रखा हुआ है इसका, मतलब पूरा जब हम इसको धीरे धीरे करके अभी काम चालू करेंगे, प्लांटेशन का काम होगा, अभी तो इसमें गेट वगैरह का काम चालू हो रहा है, वो सब चीजें स्टार्ट हो रही है। तो हमने इसमें 2 to 3 years का टाइम स्पैन रखा हुआ है फॉर अस। एंड बाय दैट टाइम लाइक आफ्टर 3 years इफ डाउन द लाइन इफ समवन प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट ऑल्सो, जैसे अब हमारे पास ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि हमें एक 20 का ब्लॉक चाहिए, और अगर आप हमें 2025 दिसंबर तक, या फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बोलता है कि 2025 दिसंबर तक या 2026 मिड तक हमें 20 विलास बना के दीजिए ऐसा कुछ, तो वो हम फिर प्लान करते हैं उनके साथ वैसे। Great. And Bhaveji, just to answer, Ahmedabad से 100 Ahmedabad airport से दुलेरा is 120 kilometers. Ahmedabad city से is 109 kilometers. Done. और And एक्सप्रेस से बन जाने के बाद ये 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर रहेगा। correct. 72 No, आई so I थिंक। think we are through with all the questions raised by people, and we can just show the last process जहाँ पर आप अपना लीड कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, हाउ योर लीड्स विल बी मैनेज। देयर इज अ वेरी सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। तन्मय, इफ यू कैन प्ले द वीडियो। सो एक ऐसा एनआरओ गुजरात जिससे आपको मैसेज आया है ना, वी हैव क्रिएटेड अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। आप इस एनआरओ गुजरात में आपको जो भी प्रोजेक्ट के बारे में समझना है आप मांग सकते हैं। आपको कोई कस्टमर का लीड डालना है तो सिर्फ नाम नंबर डाल दो, आपके नाम पे लीड रजिस्टर हो जाएगा। अगर सिस्टम में ऑलरेडी है तो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा। आपको आपके क्लाइंट का साइट विजिट शेड्यूल करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं, शेड्यूलर साइट विजिट वो वहीं से हो जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम दैट यूल बी यूजिंग। और आप जैसे ही लीड डालेंगे हमारा क्लोजिंग टीम उनसे बात करेगा और फॉलोअप करेगा, साइट विजिट के लिए बात करेगा, क्लोजर के लिए बात करेगा। आपको आपका लीड का स्टेटस जानना है, किसी भी लीड का कभी भी जानना है तो आप सिंपली नाम डाल सकते हैं कि भाई मेरे लीड का क्या हुआ, इनका क्या नाम है, आप बताएंगे, आपको सिस्टम में जो स्टेटस है रियल टाइम पर आ जाएगा। और हर मंडे को आपकी जितनी लीड्स हमारे यहाँ चल रही है उसका एक रिपोर्ट आएगा, जिससे आप अब तक का देख सकते हैं। उसको आप एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल सेमी मास्ट रहेगा सेफ्टी के लिए। आपको आपके अकाउंट मैनेजर से बात करना है, आप सिंपली उस पे मैसेज करें ग्रुप के अंदर, आपको आपके अकाउंट मैनेजर से बात भी हो जाएगी। तो आपके ऑल द प्रोसेसेस आर ऑटोमेटेड। तो आपको मतलब इट इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम दैट वी आर यूजिंग दैट कैन हेल्प यू इन मैनेजिंग द एंटायर योर लीड्स। So I think there is one. How will the Delhi client visit to Dulera be done? सो नरेश, दिल्ली क्लाइंट्स टिपिकली हमने अभी तक जो देखा है ना, इसमें टिकट साइज छोटा है तो काफ़ी कस्टमर्स तो ऑनलाइन ही ट्रांजेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और या फिर मैक्सिमम ये करते हैं कि वो एक लमसम टोकन देके फिर विजिट के लिए आ जाते हैं। और वो बाय एयर या फिर बाय ट्रेन जैसे भी आते हैं, उनका रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से लेकर के उनको दिखाना, उनका पेपर वर्क पूरा करना, जो भी प्रोसेस होता है वो हम कंप्लीट करते हैं और उनको वापस ड्रॉप कर देते हैं। हाँ, अगर उन्होंने बुकिंग कर लिया, उनको सिर्फ दस्तावेज करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन हो जाता है।
I think I have missed that build what time your client is registered in the system. See, हमने बहुत सिंपल रखा है. It is a very long term relationships. हम क्या कह रहे हैं कि आज अगर आपने कोई लीड दिया है हमें और हम उस पर काम कर रहे हैं, तो जब तक कोई और ब्रोकर के साथ में, चैनल पार्टनर के साथ में आपने कैंसिल फेल कर दिया, एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग कि फॉर एग्जांपल आपका एक कस्टमर है, आपने इंक्वायरी दिया और उन्होंने मना कर दिया, हम सिस्टम में डालेंगे फेल हो गया, तुरंत आपको उनका मैसेज आ जाता है एंड देन यू कैन एक्ट अपॉन इट. हमारे लिए तो अगर आपने लीड दे दी तो हम जब तक काम कर रहे हैं वो लीड आप ही की है. अब हमारे ने हमने ऐसा कोई विंडो नहीं रखा है. सिर्फ क्या हो जाता है कि हमने वो कस्टमर फेल हुआ, हमने आपको इंटीमेट कर दिया. फेल होने के बाद में अगर बाय चांस कोई दूसरे चैनल पार्टनर लेकर के आ रहे हैं, तब वो दूसरे चैनल पार्टनर में जाएगा और वो फेल अगर 6 महीने भी नहीं होगा तो भी लीड आप ही में है. और अगर फेल होने के बाद में भी अगर कोई कस्टमर आता है तो भी आप में है. तो हमारे लिए तो अगर आपने किसी को इंट्रोड्यूस करवा दिया, यूर कस्टमर इज यूर कस्टमर. हमें ऐसा कुछ इसमें विंडो नहीं रखा हुआ है. आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, अब वो अपना टाइम लेंगे जब तक मर्जी काम करे. हमारे साथ कुछ नहीं है. सिर्फ हमें ये देखना है कि कोई और चैनल पार्टनर के साथ में अगर कुछ होता है देन वी विल हैव टू टेक अ कॉल कि आपने फेल कर दिया था तो वो लेकर आए, और एक्टिव चल रहा है तो चल रहा है. आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्लोजिंग हमारा काम है. हम आपके बिहाफ पे उसको जब तक वो मना ना कर दे फॉलो अप करेंगे. इज देयर एनीथिंग, एनी अदर क्वेश्चन? डन. वैसे तो आई थिंक इट वाज जस्ट द स्टेपिंग स्टोन. टीम आपके साथ कांस्टेंट टच पे रहेगी, तब आपको और भी हम कर सकते हैं. डन एंद्रेश. राजवीर, आप एक बार एंद्रेश जी को अभी की करंट पिक्स भेज देना, वो आपको भेज देंगे करंट पिक्स. वी विल शेयर इट विद यू. So we'll take another minute in case somebody has any questions to ask. Please write in the questions. Happy to answer. Then I think it is good to go then. Thank you everyone for coming. Thank you Meenakshi ji, Rupendra ji, Bindya, Tanmay, Rajveer. So we will head back to our work. We will see how can we now touch base you individually and get the most out of it. राजवीर आपके साथ टच में रहेंगे. ही इज योर आरएम, तो कॉन्स्टेंटली टच में रहेंगे आपके. ही कैन हेल्प यू. राजवीर एक बार हाई कर दो सबको. डन. ओके. थैंक यू एवरीवन. Thank you so Thank much. you. Thanks everyone. Thanks. Cheers. थैंक यू. Bye. बाय बाय. Thank you. Thank you. Bye. Take care.